from IQ we can get a good placement in good companies. So Hmm. I started my IT coding in Java from scratch in IQ. Hmm. Uh, Hmm. I think it took me 10 months to do backend all such things from beginner to the expert level. uh, the mentors here are very good, Adarsh sir, Ritik sir, so they help me in every situation. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. We are back with another testimonial. Today we have Prasad Gaurav with us. Prasad has recently been placed in TransUnion as an associate software engineer at a really good package. Prasad has been associated with AccioJob for more than a year now. He has done his graduation in BTech Electronics and Communication. So today we try to talk to him and understand what was the motivation behind making a career in software development. How was he able to crack such a good company at a great package? And if he has any sort of advice for anyone who wants to make a career in coding, so do make sure that you watch this video till the end. But before moving forward, take a moment to subscribe our channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. Now, without wasting any more time, let's jump into the session. Hi, Prasad. Thank you so much for taking out time to do this with us. Can you quickly introduce yourself for our viewers? Yes, so my name is Prasad Dashrath Gurav. I live in Vileparle, Mumbai. I completed my Bachelor's of Engineering in 2022 in Electronics and Telecom. After that, I always had interest in IT field, and I have also now. So I started pursuing this full stack web development course to get placement in a good IT company. Actually, my one of my friend referred me this Accio job. He already placed in I think May 2022. So he told me about from Accio we can get a good placement in good companies. So Hmm. I started my IT coding in Java from scratch in Accio. Uh, Hmm. I think it took me 10 months to do backend all such things from beginner to the expert level. Uh, the mentors here are very good, Adarsh sir, Ritik sir, so they help me in every situation. Uh, so that's it. So that's how I started the course of IQ. ओके सो प्रसाद, जब आपके फ्रेंड ने आपको कोर्स के बारे में बताया था, राइट, सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट, लाइक व्हाई डिड यू डिसाइड टू basically continue or maybe start your journey with AccioJob, because there were many other options as well for you, right? So Okay. tell us a little bit about that phase कि आप जब कॉलेज में थे, maybe why you felt like that you should be upskilling yourself in this in this field, and when you finally came to know about AccioJob, how was the experience like? ओके, तो जब मैं कॉलेज में था तो एक्चुअली मुझे केटी तो एक भी नहीं था, बट कोरोना फील्ड था तो प्लेसमेंट में भी वो हो गया, सबका लो हो गया प्लेसमेंट. और मेरा मेन ये था कि मेरा मेरा 12th में कम मार्क्स था, 58 था, और सब एक्चुअली कॉलेज प्लेसमेंट में 60 लगता ही था, तो वो एक था. और जो मेरा दोस्त था वो जिसने यहाँ से लिया था प्लेसमेंट, उसने इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग किया था और वो प्लेस हो गया एक्यू में से. और तो मैं सोचा कि मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम किया है, मैंने थोड़ा बहुत तो कोडिंग, थोड़ा तो मतलब नॉलेज था ऑलरेडी क्या होता है क्या नहीं. तो वो बोला कि हो जाएगा यहाँ से. तो वो मेन रीजन था कि 12th का परसेंटेज कम था और वो कवर करना था, क्योंकि इंजीनियरिंग का तो परसेंटेज मेरा अच्छा था, एटलीस्ट मेरा एज इन 8 था CGPA 10 से ओवरऑल का. तो मेरे को लगा था कि इंजीनियरिंग में हो जाएगा कॉलेज से, बट वो 12th के परसेंटेज कम था, इसलिए मैं सोचा कि यहाँ से ही कर लो, क्योंकि वहाँ से तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रहा था रिज्यूम. समझ गए, ठीक है. तो प्रसाद, AccioJob के साथ भी आपका जो जर्नी है वो मतलब 1 साल से ऊपर हो गई है, राइट? आपने अक्टूबर में ज्वाइन किया था और अब जाके फाइनली आप ट्रांसयूनियन में प्लेस हुए हो, तो काफी लंबी जर्नी रही है. तो थोड़ा जर्नी के बारे में बताओ, लाइक हाउ वर द अप्स एंड डाउन्स, लाइक सबसे इजी पार्ट क्या था आपके लिए इस पूरी जर्नी में और सबसे टफेस्ट क्या था, और आपने उस चीज से कैसे डील किया है? एक्चुअली सबसे पहले 3 मंथ्स तो एकदम मतलब मजा आता था, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस थोड़ा वो थे, इजी भी थे, बट सीखने को ज्यादा था. मीन्स स्टार्टिंग था तो एक्साइटमेंट भी था वहाँ पे, और सर्स भी आते, सर्स वगैरह सब थे, मजा आता था. और वहाँ पे एप्टी भी मतलब लॉजिक भी ज्यादा बिल्ड होता था. बाद में
जो हुआ वो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट था, क्योंकि उसमें डेटाबेसेस सब अलग अलग थे और थोड़ा हार्ड भी होने लगा। तो वहां पे कैसा कि अगर नहीं आया तो टेंशन, बट आया तो बहुत ज्यादा मजा आता था, क्योंकि इजी में तो हो ही जाता था। जो हार्ड था उसमें अगर नहीं हुआ था और बाद में हो जाता था वेरिस वेरिस आने के बाद। तो और वहाँ पे जब जब डेटाबेस वाला चालू हुआ तो फ्रेंड्स भी यहाँ से बन गए सब आईक्यू से, तो सब मिलके करते थे कुछ ना कुछ। तो वो उसमें ज्यादा मजा आता था। मिलके 1 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन रहता था हर रोज दोस्तों के साथ। तो किसी को कुछ आया नहीं, असाइनमेंट्स का रह गया तो सब बताते थे, और प्रोजेक्ट विजेक्ट्स भी आते थे तो मजा आता था प्रोजेक्ट विजेक्ट्स में। नाइस नाइस। सो प्रसाद, ये वाली कंपनी क्रैक करने से पहले आप कितनी और कंपनीज में बैठे हो? मैं 15-20 कंपनीज का तो दे चुका था इससे पहले। बट किसी किसी में रेज्यूमे, क्योंकि रिसेशन फेज चालू है अभी बहुत सारा, तो रेज्यूमे किसी किसी में फाइनल राउंड में तो थोड़ा वो लगता था कि फाइनल राउंड में आने के बाद हो गया, शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ कंपनी के लिए। क्योंकि कोडिंग राउंड तो हो जाता था, क्योंकि कोडिंग तो यहाँ से इतना होने के बाद तो सीखने के बाद तो हो ही जाता था कोडिंग राउंड क्लियर। बट जो फाइनल जो एचआर के साथ डिस्कशन, उसका भी ट्रेनिंग बाद में मैंने अच्छा लिया बाद में, तो उसके बाद भी होने लगा। बट कभी कभी मेनली तो एफटी 50 भी है, क्योंकि एफटी 50 में भी आप निकल सकते हो, क्योंकि एफटी पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। और यहाँ पे एफटी पे पहले ही मैम ने पहले दो महीने एफटी का ही था पूरा, तो वहां से एफटी थोड़ा स्ट्रांग था। ओके, got it. Now that you have cracked this company, what do you think is the reason that you have been able to crack this? मतलब आपने 15-20 कंपनीज में इंटरव्यूज दिए हैं, कहीं पे आप मे बी एचआर राउंड में रह गए, कहीं पे एफटी की वजह से रह गए होंगे, बट फाइनली आपने जब ये वाली कंपनी क्रैक कर ली है, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि किस वजह से आप ये कंपनी क्रैक कर पाए? एक्चुअली बेस्ट तो मॉक्स के वजह से, क्योंकि कई बार होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वो लोग सिखाते हैं एक मॉडल हो गया, मॉक्स भी अगर नहीं लेंगे तो हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। बट अगर हम लोग को आता है कि नहीं, वो तो टेस्ट होता ही नहीं है एंड में। तो यहाँ पे कैसे मॉक्स तो रहते हैं, 10 में से 8 निकालोगे नहीं तो नेक्स्ट मंथ आप आगे जाओगे ही नहीं। तो सीरियसली करना ही पड़ता है सबको, नहीं तो अटक जाओगे उधर ही। तो उससे प्रैक्टिस ज्यादा होते और क्वेश्चन समझ में आते हैं एक्चुअली। जब जितने ज्यादा देंगे ना इंटरव्यू, उससे अपने को क्वेश्चन तो समझ में आते हैं कि क्या हो सकते हैं। कि गिन के अगर समझो 400 क्वेश्चन है तो जिनमें से गिन के 20-25 क्वेश्चन रहते हैं वही आते हैं हर इंटरव्यू में। ऐसा तो हो ही रहा था मैं, तो वो एक अपने को वो हो जाता है, पैटर्न समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, कि क्या आएगा और किस क्वेश्चन को किस तरह से। क्योंकि कभी कभी तो अप्रोच बताने पे भी वो सामने वाले इंटरव्यू खुश हो जाते हैं और क्वेश्चन का एक्चुअली सॉल्यूशन मांगते भी नहीं है। तो सब अप्रोच वो सब करने से समझ जाता है, तो इजी होता है देने में इंटरव्यू बाद में। ठीक है। सो आई थिंक जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आपको जो चीज हेल्प करी है वो यही है कि आप इतने टाइम से कंसिस्टेंटली बहुत टाइम के क्वेश्चंस कर रहे थे और धीरे धीरे आपने इतने इंटरव्यूज दे दिए थे कि आपको काफी सारे क्वेश्चंस तो यही समझ आ गया था कि मतलब यही है जो मोस्टली कंपनीज पूछ रही है, एंड यू हैड अ वेरी वेल प्रैक्टिस ऑफ ऑल ऑफ दोस, सो देन यू वर एबल टू क्रैक दिस कंपनी। यस दैट्स ग्रेट। तो दिस ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट क्वेश्चन प्रसाद। जैसे कि आप एक उन स्टूडेंट्स में से हो जो नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस इतना कुछ पढ़ा नहीं था कॉलेज में। यू स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम टू दिस कोर्स, राइट? 1 साल से ऊपर हो गया था, बहुत प्रोजेक्ट बनाए हैं, बहुत कुछ करे, बहुत सारे रिजेक्शन झेले। तो क्या कहना चाहोगे आप उन स्टूडेंट्स को जो कि थोड़ा एस्पायर करते हैं इस फील्ड में आने के लिए, बट देन दे डोंट वांट टू पुट इन द द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दैट मे बी यू डिड, और वो अप्स एंड डाउन्स झेलने की उनमें वो नहीं है। सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर जर्नी एंड इट्स अ लिटिल बिट स्मूथर फॉर देम देन योर्स? एक्चुअली अगर पहले दिन से आप कंसिस्टेंट रहोगे तो इजी हो जाएगा पूरा, क्योंकि सबने तो क्योंकि अभी तो फेज रिसेशन का था इसलिए 1 साल लगा, नहीं तो मेरे को लगता है जल्दी भी हो जाता था, क्योंकि अभी चैट जीपीटी वगैरह है तो इसलिए थोड़ा सबको टाइम लग रहा है, क्योंकि हायरिंग इतना हो नहीं रहा है। बट फिर भी अगर कंसिस्टेंट रहेंगे या सब रहेंगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि कंपनीज तो आती ही रहती है, उसका भी टेंशन नहीं रहता। और उतना टाइम अगर मैं रहा भी तो मैंने फ्रंट एंड भी किया, मतलब 3-4 महीना, तो वो भी बैठे बैठे आप सीख ही रहे हो, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है ऐसा है। क्योंकि मेरा 10 महीने का होने के बाद मेरी 4 महीने फ्रंट एंड का भी होगा, तो अभी मेरा फुल स्टैक का ही कोर्स हो गया है देखा जाए तो मेरे को चाहिए था तो बैक एंड में तो अगर, बट फ्रंट एंड में भी मेरे को जॉब मिल जाता था रिसेशन में, तो मैं बहुत कर लिया, ऐसा हो गया। तो
और जितना करोगे उतना तो बनने ही वाला है नॉलेज। तो डेटाबेस का भी नॉलेज पूरा हो गया अभी, क्योंकि डेटाबेस का भी सिखा रहे तो अच्छा हो रहा है। Nice. That's great to know, Prasad. I think you have had a pretty fulfilling journey with AccioJob, and Yes. congratulations again for finally cracking such a great company. And yeah, so this will be all from my end. These are the questions I had in mind. Thank you so much for taking out time from your busy schedule to do this with us. I hope people listening to you will surely find it inspirational, your journey, and will start their coding journey as soon as possible. Do you have anything else to say? No, ma'am. Just do coding. Okay. Thank you so much, Prasad, for your time. That is it for today's video, guys. I hope you all found it extremely insightful. If you guys have any suggestions on what kind of questions you want us to cover in our next testimonial, do let us know in the comment section below. And if you guys are also interested in learning coding or making a career in tech, then just visit the link provided in the description below. The link will take you to an aptitude test, which will help you in identifying which course is best for you, be it full stack or data analytics. Both the courses have amazing instructors from top IT companies who will be there to guide you throughout your journey. So do make sure that you check out the link provided in the description box below. And if you guys are new to the channel, then don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. And thank you so much for watching this video. We will see you in the next one.